तो स्वीडनिंग मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर एंड स्वीडनिंग सेम ही है। इसमें ये है प्रिंसिपल्स गवर्निंग प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन इन स्वीडनिंग, हॉर्टिकल्चर, पेस्टोरलिज्म, फिशिंग, यही सब है। सेम पैटर्न में होता है जो एक कराया था ना, प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन इन हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज, वही पैटर्न में होगा। इट इज हॉर्टिकल्चर, पता ना हॉर्टिकल्चर क्या है? एक्चुअली हॉर्टिकल्चर इज प्लांटेशन विथ डिगिंग स्टिक, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। इन हॉर्टिकल्चर प्लॉ इज नॉट यूज्ड, प्लॉ इस्तेमाल नहीं होता। तो रियल मीनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर इज प्लांटेशन विथ डिगिंग स्टिक, समझा? यूजुअली फ्रूट्स vegetables are grown with digging stick। इसीलिए जो तुम सुने हो ना वो गलत भी नहीं है। जो वेजिटेबल्स वगैरह जो है ना, फ्रूट्स वगैरह, यूजुअली दे आर प्लांटेड विदाउट प्लॉ विथ डिगिंग स्टिक। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब तो ये है। व्हाट इज स्वेडनिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये बताना। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? Cultivation, tell me the process of shifting cultivation. First we cut the forest. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दे। यस, फिर क्या होता है? उसमें भी प्लॉ इस्तेमाल नहीं होता। तो हॉर्टिकल्चर एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन सेम थिंग, क्योंकि इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन ए पीस ऑफ लैंड इज सिलेक्टेड एंड ऑल द ट्रीज बुशेस आर क्लियर्ड ऑफ, देन दे आर बर्न। आफ्टर बर्निंग स्लैश विल बी लेफ्ट। नाउ दिस स्लैश और एश विल बी मेड टू बी ए बेड, बेड बनाया जाता है। Now in that bed with digging stick, plants are grown. तो हॉर्टिकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मोर और लेस। इसमें भी डिगिंग स्टिकी होती है, हॉर्टिकल्चर में भी डिगिंग स्टिकी होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड हॉर्टिकल्चरिस्ट, समझा ना? तो ये भी सेम है। तो फ्रेम कैसे होगा? पहले गिव सम एग्जांपल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, जैसे कि बैगा। बैगा इज ए ट्राइब लिविंग इन एन एरिया इन एन अराउंड ऑफ मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मंडला, ठीक है। फिर मीना, संथाल, दे ऑल आर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स और हॉर्टिकल्चरिस्ट। फ्रॉम वर्ल्ड यू कैन refer to Masai, horticulturist, ठीक है। Then you talk about ways and life, way of life of horticulturist or shifting cultivators, वही moral the same ही है, with some difference। See, horticulturist or shifting cultivators, they are not nomadic people, समझा ना? Hunters and gatherers are always nomads. So they are having small family. But in case of horticulturists, they are semi-settled population or semi-permanently settled population. And you know, they move once in 5 years, 6 years. And these societies have little surplus also. Whenever a society will grow something, even by means of shifting cultivation, they will have some surplus.
समझे ना? As a result, they have little larger population, maybe around 100, 200. तो पहले क्या था, 30 था, 30, 40 था, अभी 200, 300 का सोसाइटीज बन गई. So horticulturists or shifting cultivators, they are semi-permanently settled population. With little surplus, they can afford to have little larger population, maybe few hundred. And few hundred वो ज्यादा तो नहीं होना. So they practice exogamy. They will never marry within their own group. And they live in a network of extended families. So in the group, almost everyone is relative. And in a group of 100 population, they are very close and they know each one by name and by face. ठीक है? And they are also using primitive technologies. ऐसा नहीं है, they are using advanced technologies for shifting cultivation. Primitive technology इस्तेमाल करता है. ठीक है? They are also non-monetized economy. उसमें भी money नहीं होता. They don't use money as medium of exchange. Same kind of political system. They maintain internal order, external peace by means of relationship, as in nomad. तो सब सेम होता है. And they are also highly superstitious. Believe in भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, सब करते हैं. ऐसे उनकी लाइफस्टाइल से. Now we can discuss factors for production, distribution, consumption. तो principles of production क्या क्या है? They also maintain strong social network to compensate backward technologies. क्योंकि in horticulture, shifting cultivations, you have to clear jungles and you do not have bulldozer, JCB. तो क्या है? They call upon their relatives to clear jungles, to plant fruits, vegetables, harvesting. अकेले नहीं कर सकता है और एडवांस टेक्नोलॉजीज भी नहीं है. सो दे मेंटेन स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क. ऐसे उधर भी था. डिविजन ऑफ लेबर भी सेम ही है. जैसे कि क्लियरिंग फॉरेस्ट इज डन बाय मेल. ठीक है? देन हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो डन बाय मेल. Sometimes those are horticulturists or shifting cultivators. They used to go for hunting. So hunting of big animals will be done by male. Female का काम क्या होता है? Making bed of slash, planting fruits, nuts, vegetables, weeding out. Then at the same time they are also gathering forest product. If they want to hunt some animals, they should go for small animals. And children are bringing drinking water, maintaining cleanliness. That is the principle. They never fail totemic plants. क्योंकि many tribals do have totem plants and animals. In horticulture, you have to clear jungles. If there is any totemic plant, that won't be filled out. They will never fill down totemic plant. जैसे totemic animals hunting में नहीं मारा जाता है, इसमें totemic plants को they will never fill down. ठीक है? So these are principles of production. Distribution क्या है? They are also egalitarian. वो भी egalitarian है. They also practice community ownership. इसमें they have little surplus. That's why at times they practice ceremonial consumption. कि जहां पे भी पेस्टोरलिज्म आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, there will be some surplus. अगर सरप्लस होगा तो पॉपुलेशन भी थोड़ा बड़ा होगा. कभी कभी पार्टी सार्टी भी देगा. So if horticulture or shifting cultivation is asked in first paper,
That should be the pattern. If it is asked in the second paper, don't use this approach. पूरा गलत हो जाएगा. वहां पे क्या अप्रोच होगा? ट्राइबल्स में आते हैं कभी कभी, उसमें एग्जाम्पल्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, कौन कौन प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में. देन प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. डिमेरिट्स ज्यादा है, मेरिट्स कुछ एक दो है. देन स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इवेल्युएशन ऑफ द स्टेप्स. ये सक्सेसफुल नहीं है गवर्नमेंट, क्योंकि दोज आर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, दे आर नॉट गिवन एनी ऑल्टरनेटिव, क्योंकि दे डू नॉट नो अदर प्रोफेशन. अगर आप उसको बोलो आप बंद कर दो, एट द सेम टाइम दे हैव नॉट बीन गिवन एनी ऑल्टरनेटिव, तो क्या खाएगा? दिस इज स्टिल देयर प्रैक्टिस. कुछ कुछ जहां पे ऑल्टरनेटिव दिया गया, जैसे कि त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में, दे हैव गिवन अप शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो ये मैं सेकंड पेपर में करा दूं. So that approach will be in the second paper. The second approach of second paper should not be used in first paper. तो जीरो मिलेगा. फर्स्ट पेपर के अप्रोच सेकंड पेपर नहीं होना चाहिए, तो भी जीरो मिलेगा. क्योंकि इसमें देखो सिलेबस देखो, मैं देखा बहुत लोग ना एक टॉपिक तैयारी नहीं करता है, सेकंड पेपर में थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, लिख देता है, फर्स्ट पेपर में जीरो मिल जाएगा. तो ये इसलिए मैंने उस टाइम कराया नहीं था. तो फिशिंग बोले तो हंटिंग गैदरिंग, फिशिंग इज ए काइंड ऑफ हंटिंग ना. हॉर्टिकल्चर जैसे पेस्टुरलिज्म होती है, उसमें एक दो डिफरेंस होगा. दैट इज दे प्रैक्टिस पैटर्नल पैरेलल कजन है. जैसे लोग एक्सोगमी करते हैं ना, दोज आर पेस्टुरलिस्ट, दे preferred to marry their father's brother's daughter. I think I have explained it. समझा ना? एक अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं, बाकी सेम ही है और कुछ नहीं. उनके बाकी लाइफस्टाइल भी इसमें थोड़ा सरप्लस होता है, ठीक है. दे आर ऑल्सो नॉन मोनिटाइज्ड और कुछ नहीं, बाकी सब सेम ही है. ठीक है. नोट्स में है क्या ये? नहीं तो मैं दे दूंगा, बोल देना. तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी डन. क्या कह रहे हैं? अब पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी करते हैं. पॉलिटिकल यूनिट 4, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन इंस्टीट्यूशन. आई हैव सीन एवरी ईयर क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस टॉपिक, हर साल आएगा. देयर आर मेनली 2 टॉपिक्स, दोनों ही आ जाते कभी कभी. वही एक अंतर होगा और बाकी सब सेम, और सब कुछ सेम. इसमें टोटेमिज्म कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर नॉट किलिंग ना, दे आर नाइदर किलिंग नॉर फेलिंग. उनको किसी प्लान को काटने की जरूरत नहीं है, किसी एनिमल को मारने की जरूरत नहीं. और प्लांट होता ही कहां? दोज आर पेस्टुरलिस्ट, दे मेनली लिव इन डेजर्ट एरिया. वहां पे प्लांट जो होता है खजूर की प्लांट. बताओ व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम? तो बताओ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वो भी तो कुछ होगा. बताओ बसंती. एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ मीनिंग निकला? एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन. एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिंपली मीन्स गेटिंग थिंग्स डन.
तो क्या मैं इस ऑफिस में क्या सब कुछ खुद करता हूं? फैमिली एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। अपने घर में क्या आप सारे काम खुद कर लेते हो? तो लोग सोचता है बहुत नैरो कर देता है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गवर्नमेंट ऑफिस और पुलिस, डीएम लोग करते हैं। हर जगह पे एडमिशन होती है। दिस इज द सिंपलेस्ट मीनिंग, गेटिंग थिंग्स डन। जो खुद से कर लेते हो, दैट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन। व्हेन यू गेट योर थिंग्स डन बाय अदर्स, that is a kind of administration. So I have not talked of administration. I have asked for political system. Find that is governed. गलत बोला, ये सही बोलिए। Political system is that part of the social system which deals with maintenance of internal order and external peace with the involvement of authority and leadership. समझी ना? It is that part of the social system dealing with maintenance of internal order and external peace with the involvement of authority and leadership. ये है पॉलिटिकल सिस्टम। So tell me, how in our society internal order, external peace are ensured? How internal order and external peace are maintained in our society? गवर्नमेंट तो सब कुछ करती है। स्पेसिफिक बताओ, पहले बताओ इंटरनल ऑर्डर कैसे मेंटेन होती है, फिर एक्सटर्नल पीस कैसे मेंटेन होती है। अब बोलेगा सब तो मोदी करता है, मोदी इज गवर्नमेंट, तो वो तो आंसर नहीं हुआ ना। बताओ आयुष्मान, Using laws and rules for it. सिर्फ लॉ एंड रूल्स हो जाएगा? सिर्फ लॉ एंड रूल्स कैन इंश्योर इंटरनल ऑर्डर? Thinking of solution and implementation on तो सारे बताएगा ना। implementation on every level of society. लॉ चाहिए, लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज चाहिए, पुलिस, सीबीआई, आईबी, देन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज चाहिए। उसके लिए अगेन पुलिस आता है, जुडिशियरी आती है, जेल आती है। ऑल दिस एजेंसीज टुगेदर मेंटेन इंटरनल ऑर्डर। लॉ इसलिए आप मानते हो बिकॉज ऑफ पुलिस, फियर ऑफ पुलिस एंड जेल। जिस दिन ये दो खत्म हो जाएगा, सिर्फ लॉ कौन मानेगा? अच्छा आजाद बताना, हाउ एक्सटर्नल पीस इज इंश्योर्ड? एक्सटर्नल पीस Army and दोनों ही थ्रू डिप्लोमेट्स एंड मिलिटरी। डिप्लोमेट्स आर फॉर एमिकेबल सोल्यूशन, बातचीत करके पीसफुली करना। When amicable solution fails, then we go for violent solution through military operation. ये जो पाकिस्तान हमसे लड़ता क्यों नहीं? क्योंकि उसको मालूम है हमारे पास लाखों की आर्मीज हैं, अच्छे अच्छे वेपन्स हैं। तो कभी कभी लोग बोलता है इन्वेस्टिंग इन डिफेंस इज ए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल नहीं है। If you have strong defense capacity, that will deter external forces to attack you. अगर हमारे पास स्ट्रांग डिफेंस नहीं होगा, बांग्लादेश भी हमसे लड़ने आ जाएगा। The investment in defense doesn't mean that we will attack someone. It will act as deterrence also. That is more important. अगर अटैक कर देगा तो you cannot resist. लेकिन ऐसा कुछ करे, अटैक करने की हिम्मत ना करे। तुम देखो, वी आर सराउंडेड बाय ऑल द होस्टाइल नेबर्स, पाकिस्तान, चाइना, सारे होस्टाइल बन गया। बांग्लादेश भी कोई फ्रेंडली नहीं है,
मौका मिल जाएगा तो काट देगा। तो अब बताओ, अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस शुड नॉट इंडिया हैव स्ट्रॉन्ग डिफेंस? तो एक बार क्वेश्चन आया था, शुड 3% ऑफ जीडीपी बी इन्वेस्टेड इन डिफेंस? बिल्कुल होना चाहिए। अभी 1.5% ऑफ जीडीपी इज इन्वेस्टेड इन डिफेंस, जो कि इनफ नहीं है। किसी भी कंट्रीज के स्ट्रॉन्ग डिटरेंस के लिए यू नीड 3% ऑफ जीडीपी टू इन्वेस्ट इन डिफेंस। इंडिया में 1.5% होता है। ठीक है, ये जो अग्निवीर का जो इश्यूज आई थी, इसमें एक सॉल्यूशन है, क्योंकि ज्यादातर ना जो डिफेंस बजट होता है, सैलरी और ये क्या बोलते हैं, पेंशन में चला जाता है। टेक्नोलॉजी में कौन इन्वेस्ट हो रहा है? तो अग्निवीर लोग क्या करेगा? 4 साल की मेहमान है, इनको सैलरी भी ज्यादा नहीं है, पेंशन भी देना नहीं है, तो काफी पैसा बचे। यू कैन अपग्रेड डिफेंस अगर रियली में होता है। देखो एक्चुअली में क्या होता है। अग्निवीर कॉन्सेप्ट खराब नहीं है, लेकिन कहां तक इंप्लीमेंट हो रहा है? ये आज की डेट में ना नंबर ऑफ आर्मी पर्सनल इज नॉट इनफ, क्योंकि अगर आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, यहां से बैठ के तो मार सकता है, 10 लाख फौजी लेके क्या करेगा? तो टेक्नोलॉजी ज्यादा जरूरत है। तो सोसाइटी में तो आएगा ही लोगों, कहा उसको ये कुएं में धक्का मारा जाएगा क्या? वो तो देगा ही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही उसको। अरे जो डिफेंस में 4 साल दिया है, कुछ तो एक्सपीरियंस आया ही होगा ना। और एक चीज बताओ, मैं किसी को सपोर्ट में नहीं, किसी को अपोज भी नहीं कर रहा हूं। जो लड़का लोग जाएगा 4 साल, क्या सारे लोग क्या नौकरी करेगा 4 साल? निठल्ला बैठे रहेगा। 4 साल के बाद कम से कम 10-12 लाख उसके हाथ में आ जाएगा। और 10-12 लाख अगर हाथ में आ जाए, छोटा मोटा बिजनेस कर ही सकता है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप कंटिन्यू करो। 25% ना कितनी मेहनत कंटिन्यू भी करेगा ना, तो आप अच्छे से काम करो। अगर आपको कंटिन्यू करना होता है, सोचो एक बार 4 साल के बाद 10-12 लाख मिलेगा, बहुत कम भी अमाउंट नहीं है। अदरवाइज अगर घर पे बैठा रहेगा, 10 रुपया नहीं मिलेगा उसको, फालतू काम ही करेगा। वही व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब भी करता रहेगा। एकदम खराब स्कीम भी नहीं है, छोड़ो, वो हमारा पर्पज नहीं है। तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है, पावर, फिर ऑथोरिटी, एंड लीडरशिप। पावर, ऑथोरिटी एंड लीडरशिप। अच्छा, ये पावर क्या है बताओ? पावर, व्हाट इज पावर? सब लोग पावर के लिए आईएएस की तैयारी करते हैं। तो दोज आर नॉट आईएएस, दे आर नॉट पावरफुल। क्या बोलती? सारे, इफ यू आर नॉट आईएएस आईपीएस, यू आर निठल्ला। ऐसा है क्या? क्या बोला? किसने कुछ बोल रहा था? खराब नहीं बोला। यस, पावर इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर। अगर ये आप कर सकते हो, इवन विदाउट बीइंग आईएएस, यू आर ए पावरफुल पर्सन। तुम सोचो, गांधी, नॉट राहुल गांधी, महात्मा गांधी, see he was a lean and thin man wearing half naked clothes, having a stick, but he influenced millions of Indians, है ना? If he gave a call of freedom struggle, millions of Indians followed him.
I think he was the most powerful man during freedom struggle. He had no authority. The authority उसके पास था नहीं. He was not a government official. Even he was not a ऑफिस बियरर इन इंडियन नेशनल कांग्रेस. एक ही दो बार शायद प्रेसिडेंट हुआ था, बाकी कोई पोस्ट लेता नहीं था. तो पावर इट इज नॉट लाइक यू मस्ट हैव सम political post or government post, then only you are powerful. You simply can influence others' behavior. You are a powerful person. Ability to influence others' behavior. That is called power. There are two types of power. A coercive power, a persuasive power. Coercive power means when you influence others' behavior by brute force. This power is usually enjoyed by government officials. For example, police, army. They don't influence through amicable means. पुलिस क्या करता है? डंडा से पीट देता है. इसीलिए what they want we do that. क्या बोलते? That is called coercive power. And coercive power usually exercised by government authority, government officials. And what Gandhiji enjoyed, that is persuasive power. You persuade someone to act in accordance with your रिक्वायरमेंट. आप फोर्स नहीं करते हो, परसुएट करते हो. दैट्स व्हाई पीपल आर फॉलोइंग यू. तो गांधी जी हैड परसुएसिव पावर. ही डिड नॉट फोर्स एनीबॉडी. जो आपको आना ही है, नहीं तो डंडे से मार मार के दोबारा जीना हराम कर देंगे. वो भी नहीं बोलता. ही जस्ट कन्विंस्ड पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, सेल्फ गवर्नमेंट. All Indians, including Adivasi, Dalit, women, they all supported his freedom struggle. The importance in Gandhi's movement was he took the freedom struggle to the masses. It's the biggest importance of his political movement. जब तक mass do not support a movement, one cannot be a successful. सब लोग को इन्वॉल्व कर देता था. Where Subhash Chandra Bose failed. And another shortcoming of Subhash, it was a violent means. See, British was a mighty power. In British Empire, sun never set. And Subhash Chandra's army was a borrowed army. They were prisoner of war in Japan. And they were demoralized also. Now think, with this demoralized armed forces, can one fight against mighty British power? लेकिन पीसफुल अगर लड़ेगा, ब्रिटिश पावर को भी आप डिफीट कर सकते. And peace is always preferred to violence. So that is why Gandhi is more important. Gandhi's movement was more popular.